previous lectures, we were discussing about the number system because you are going to study the digital computers, and digital electronics is the foundation of digital electronics. And that's why we were discussing number system. So number system is not mentioned in your syllabus, but without studying a number system and without studying the Boolean algebra, it is not possible to discuss digital electronics. So unfortunately, it is not mentioned in your syllabus, but that's why we have studied number system, and now we will study Boolean algebra. So basically, Boolean algebra is a different kind of algebra. You might have studied in your previous classes, in your 8th, 9th, 10th, or classes. You have studied algebra. In mathematics, you have studied algebra. So in algebra, we are having some numbers, and then we manipulate those numbers by using some rules, and that stream of mathematics is known as algebra. Here also we are going to do the same thing, but with a slight variation, and that variation is that algebra is nothing but there are some rules, and we operate some rules of, suppose you have to manipulate two numbers 2 and 5, or manipulate, or you can say we have to multiply 2 and 5, or we have to do an addition of 2 and 5. So what we have some operators also, like plus operator, like multiplication or सर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। अब सही आ रही है? यस अब सर। आई? हाँ अब साफ आ रही है। अच्छा, so actually now we are going to study the Boolean algebra. So we have already studied something which is known as algebra in our previous classes, and what we do in we are having some numbers, and we manipulate those numbers by using some operators. Suppose we are having two numbers, 2 and 3, and we have to add these numbers. Then we use operator plus, and we apply the operator plus, and we add 2 and 3, and we get the result 5. So this is the basic structure of the algebra that we have already studied in mathematics. Now in digital electronics, we are going to manipulate the logic. Here in mathematics, we are having some numbers, and these numbers are getting manipulated by the operators. But now we want to manipulate the logic. Now let me discuss about the logic. What I mean by the term logic. You may be observing some diagram on your screen. So there is a lamp L which is connected to the source through switch A and B. So obviously it is very obvious. You can observe it, that lamp will glow only when both in the leftmost figure. Lamp will glow only when switches A and B both will be on. So if both switches will be on, then this the lamp will glow. So this and in the next figure you can see the position of switches is such that lamp will glow only when either of two switches will be on. So by logic we mean that if both the switches will be on, then and only then the lamp will glow. And in the second case, if either of the switch will be on, then the lamp will start glowing. So logic means then if switch A is on, B is on, then the
lamp will be glowing. So we can say that then only then when A and B both switches will be on, then and only then the lamp will be on. So to make the lamp on, we have to make both the switches A and B on. So we can write it as with the help of this operator dot. In place of A and B, here we have used L is equal to A dot B, but we can write that when A is on and when B is on. You must have studied set theory in your intermediate, in which this mathematical language you might have studied in intermediate in set theory. The operation and, which represents in set theory intersection, and or which represents union in set theory. So here we can say that lamp L will be on when both switch A and B will be on. So we use as one operator which we termed as dot operator. So we can write that when A is on and B is on, then lamp L will be on. But in this case, in the right figure, we can say that if either of A and B is on, then the lamp will be on. So the logic is this, that A is on or B is on. Here we are using the term or. So either A is on or B is on, then the lamp L will be on. Then the lamp L will be glowing. Glowing means then the lamp L will be on. So here what we are doing, we are not having any mathematical number. We are not having any number 2, 3, 4, 5, etc. But we are having some logic. This is the logic that when the switch is on, a switch can either be on, switch can and it can either be off. So it can be in two positions, whether it is on or off. So these are the two positions. So logic, there is a logic which favors the condition of lamp L to be on, and that is in left figure. It is when both switch A and B will be on. So in these figures, we can say that there are logics that switch A is on and switch B is on, then lamp L will be on. In right figure, similarly, we can say that either A is on or B is on, then L is on. So in these two figures, we are talking about the logics. This is the logic, whether this on and off is nothing but a kind of logic. So this circuit is very simple one. So it is just for the demonstration. So this is very simple one, but this circuit can be very complex also. So in a complex situation, we have to manipulate the logic, whether this switch is on, that switch is on, or what is the condition of some other switch which is there in the circuit. So in that case, we have to manipulate the logic. Here we are not dealing with any number. We are not dealing with a number. We are not having any number 1, 2, 3, 1.5, 3.5, etc. We are not having any number. We are having logics. So there are some conditions whether when some lamp or some circuit will be on or off depending on the situation of some switches. So here the condition that switch is either on or off, this is seen as a logic, and we are going to manipulate this logic that in which condition our lamp is on in this condition, and in any other circuit condition, uh, we will be observing the logic and we will be manipulating the logic. So since we have to manipulate the logic, so we have, just as we have manipulated the different numbers in algebra, if we have to add, we will add two numbers by the operator plus, and if we have to multiply, we will multiply two numbers with the help of the operator multiplication.
So the crux of the discussion is that here we are going to manipulate some logics, and to manipulate the logic, just as we have manipulated different numbers by the use of different operators in mathematics, in mathematical algebra, here also we are going to define some algebra which is set of some rules. As we have in mathematical algebra, we are having some rules that will allow us to manipulate these logical variables or logical values. We are So the crux is that in mathematics, in algebra, we have manipulated different numbers with the help of certain rules. Rules of addition, rules of multiplication, rules of division, rules of subtractions, etc., etc. So now we are having logics, and we are going to manipulate the logics with the help of some rules. What are those rules, etc.? That will be discussed in the algebra, which is known as the Boolean algebra. So Boolean algebra is basically an algebra which allows us, which permits us, and which provides us the rules and regulations to manipulate the logics. And what I mean by the term logic is clear from these diagrams, that when switch some depending upon the on and off condition on some switches, our net output will be either on or off. So that's why, since we have to manipulate the logic, we need some rules as in mathematics, and that rules or collection of that rules may be termed as Boolean algebra. So that's why we are going to discuss the Boolean algebra. And Boolean algebra is the foundation of digital electronics. Without Boolean algebra in number system, we cannot study digital electronics. So basically, this is what I was discussing is the heuristic definition of the Boolean algebra. The more exact and more mathematical definition of the Boolean algebra, you might not have studied this type of mathematics in intermediate, but slightly in set theory, you might have studied some kind of this kind of discussions. So Boolean algebra is basically a mathematical structure which consists of a set B, which consists of a set B and two operators plus and dot, provided the following postulates are satisfied. That means Boolean algebra is a mathematical structure. जो अभी हमने समझाया वो तो मोटा मोटा बताया, लेकिन बूलियन अलजेब्रा की कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है. जैसे जो अलजेब्रा पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, जो गुणा भाग जोड़ घटाना करते हो, वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है. तो हम एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, और उस स्ट्रक्चर की, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स जान ही रहे हो कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है. उसमें जो बात कही जाती है एग्जैक्ट, 2 दूनी 4 है तो 4 है, फिर वो 4.1 नहीं हो सकता है. तो एक तो समझने के लिए डेफिनेशन है जो हमने अभी बताया कि हाँ सही बात है कि बूलियन अलजेब्रा क्या होती है. बूलियन अलजेब्रा इस तरह की अलजेब्रा जिसमें हम जो है जिसमें हम लॉजिकल वैल्यूज को जो है वो मैनिपुलेट करेंगे. लेकिन अगर उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो बूलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 3 चीजें होती है. एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है बी, 2 ऑपरेटर्स होते हैं प्लस और डॉट. ये वाले प्लस और डॉट वो वाले प्लस और डॉट नहीं है जो कि तुमने मैथमेटिक्स में जोड़ने और मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा है. ये दूसरे ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है. ये ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे. तो अभी आगे जब डिस्कस करेंगे तो कुछ ऑपरेशन प्लस और डॉट को डिफाइन करेंगे और उसके आधार पर कुछ और उसको इलेबोरेट करेंगे. तो बेसिकली बात ये है कि जो बूलियन अलजेब्रा होती है वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सेट बी होता है जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे और 2 ऑपरेटर होते हैं प्लस और डॉट, और जो कि कुछ पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है. तो यहाँ पे जो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं दे आर नोन एज हंटिंगटन पोस्टुलेट. जो हंटिंगटन मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट बनाए थे. वो पोस्टुलेट्स या वो एक्सियम्स होते हैं. एक्सियम्स या पोस्टुलेट का मतलब वो परिकल्पनाएं होती हैं जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है. यानी कि ये जो नीचे कुछ पोस्टुलेट्स या एक्सियम्स लिखे हुए हैं इनको प्रूफ, इनका डिमांड नहीं किया जाएगा. ये मान के चला जा रहा है कि ये चीजें सत्य हैं.
तो अगर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसमें एक सेट हो, सेट ऑफ एलिमेंट बी हो, उसमें दो ऑपरेटर हो, और जो ये नीचे लिखी जो परिकल्पनाएं, पोस्टुलेट्स हैं, एक्सियम्स हैं, इनको फॉलो करता हो, दैट विल बी नोन एज बूलियन अलजेब्रा। ये जरूरी नहीं है कि यही हंटिंगटन पोस्टुलेट हो, वो और भी कोई पोस्टुलेट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेट ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो अब इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो है वो पोस्टुलेट्स हैं। तो एक पोस्टुलेट जो पहला वाला है वो कह रहा है कि दिस शुड बी क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटर प्लस। तो दो ऑपरेटर इसमें हमारे पास हैं, एक प्लस है और एक डॉट है। ये प्लस और ये डॉट वो वाला प्लस और डॉट नहीं है जो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बार बार दिमाग में रखना। तो जब जो है वो क्लोजर कह रहा है तो क्लोजर का एक मतलब होता है। क्लोजर का मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हारा अलजेब्रा में पढ़ते हो, 3 और 2, कोई भी दो रियल नंबर को जोड़ोगे, रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर 2 लोगे उसी सेट में से, तो 3 और 2 मान लो ले लिए, एक ऑपरेशन ले लिया, मान लो जैसे प्लस ले लिया, दोनों को जोड़ना है, तो 3 और 2 का जोड़ होगा 5। तो जो सेट हमने लिया है वो रियल नंबर का लिया है। तो दो रियल नंबर लिया तो उनका जोड़ किया तो वो भी रियल नंबर आया और वो भी उसी रियल नंबर के सेट में है। तो क्लोजर का यही मतलब होता है कि जिस सेट में से तुम दो नंबर ले रहे हो और उसको प्लस ऑपरेटर से, या जो बी पार्ट में लिखा हुआ है कि क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू डॉट, तो प्लस ऑपरेटर या डॉट ऑपरेटर जिसके भी रिस्पेक्ट में वो कह रहा है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि उसी सेट में से जब दो नंबर ले करके प्लस या डॉट ऑपरेटर से ऑपरेट कराओगे तो जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे जो सेट मान के चल रहे हैं, ये बी सेट मान के चल रहे हैं, और बी में मान लो कोई दो एलिमेंट हैं। जैसे कि तुम्हारे रियल नंबर वाली अगर बात करें तो दो रियल नंबर अगर मान लें, दो रियल नंबर 3 और 2 है, तो उसको प्लस जोड़ वाले ऑपरेटर से कराए तो 3 और 2 5 आएगा। तो 3 और 2 दोनों रियल नंबर है और जो उसका जोड़ आ रहा है वो भी रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि दो एलिमेंट जो तुमने उस सेट से लिया है उसको प्लस या डॉट जिस भी ऑपरेशन के लिए वो कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है उससे ऑपरेट कराओ, तो जो ऑपरेशन के बाद रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। अगर उसी सेट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी का। फिर वो कह रहा है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो प्लस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसको कि वो जीरो से डिनोट कर रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर उसको किसी भी एलिमेंट से प्लस करोगे या प्लस ऑपरेटर से उसको ऑपरेट कराओगे उस आइडेंटिटी एलिमेंट को, तो जिस एलिमेंट को कराओगे वही एलिमेंट आ जाएगा। जैसे कि अपने मैथमेटिक्स में भी अगर देखोगे तो जीरो जो है एक तरह से एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जो मैथमेटिक्स में एडिशन का रूल है उसके हिसाब से अगर किसी भी नंबर को लेके उसको जीरो में जोड़ें, अगर तो 2 + 0 करें चाहे 0 + 2 करें, 2 ही आएगा। तो जीरो इज कॉल्ड एज एन एडिटिव आइडेंटिटी। हो सकता है इंटर में मैथमेटिक्स में चीज़ें आई होंगी, नंबर सिस्टम वहाँ भी हल्का सा है, तो वहाँ पे इस तरह की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी सेट थ्योरी में कहीं पे आई होगी। ये उसी तरीके की चीज़ है। इसी तरह एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कह रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीरो, और आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस एंड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन डॉट शुड एग्जिस्ट। तो प्लस के रिस्पेक्ट में जो है वो एक जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, या जो भी एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। और अगर एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेगा उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका मतलब ये होगा कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम डॉट ऑपरेशन से ऑपरेट कराएं 1 के साथ, तो x.1 लिखें चाहे 1.x लिखें, वो कम्यूटेटिव होता है, वो x ही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर इंटर में थोड़ा बहुत जिक्र हुआ होगा, उसका मतलब यही होता है कि जिस भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर उस ऑपरेशन से आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराया जाए
तो जिस जो एलिमेंट होता है इटसेल्फ, वो एलिमेंट इटसेल्फ ही आ जाता है। तो ये मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेशन डॉट। यहाँ पे प्लस और डॉट एग्जाम्पल के लिए, भले हम बार बार कह रहे हैं कि मैथमेटिकल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, जोड़ने और मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन ये जोड़ और मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, ये कोई भी प्लस या डॉट ऑपरेशन हो सकता है, जो कि हम आगे डिफाइन करेंगे तो और उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से जो प्लस ऑपरेशन है और जो डॉट ऑपरेशन है, ये दो ऑपरेशन दिए हैं हमने बूलियन अलजेब्रा के लिए, दे शुड बी कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव तो पढ़ा ही होगा कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दैट इज कम्यूटेटिव। किसी भी ऑपरेशन में x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स वगैरह वगैरह ये तो पढ़ा होगा। ये भी पढ़ा होगा कि एक ऑपरेशन दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होने का मतलब, जैसे डॉट, अगर हम ये कहें कि डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, तो जो स्क्रीन पे देख रहे होगे कि x डॉट विद इन पैरेंथेसिस y प्लस z, ये होता है x डॉट y प्लस x डॉट z। ये अगर इसको डॉट को मल्टीप्लिकेशन और प्लस को एडिशन की तरह समझा जाए, है नहीं, लेकिन समझा जाए अगर, तो ये वाला जो फोर्थ ए वाला रूल है, ये तो सब लोग जानते हो कि ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होता है, तो सब करते जा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज that dot is distributive over plus। ये तो सब लोग पढ़े हो, करते आ रहे हो वगैरह वगैरह, तो इसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन जो बी वाला है उसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि बूलियन अलजेब्रा में जो हंटिंगटन पोस्टुलेट्स हैं, इसमें प्लस भी डॉट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये वाली प्रॉपर्टी जो मैथमेटिकल अलजेब्रा में पढ़ते हैं हम, उसमें ये चीज़ नहीं होती। उसमें तुम जो अगर प्लस और डॉट ऑपरेशन है, तो उसमें एक्स प्लस वाई डॉट जेड को एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एक्स प्लस विद इन ब्रैकेट अगर वाई डॉट जेड हो, तो वी कैन एक्सपेंड इट एज एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। So this is the unique property that is different from the algebra, mathematical algebra that we have studied। और ये फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टी है, ये कहती है एक एलिमेंट x जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए इस सेट में। अगर x एग्जिस्ट करता है तो एक x कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं इसको, x कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए इस तरीके से कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 हो और x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट 0 हो। तो ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये पोस्टुलेट भी सेटिस्फाई करना चाहिए अगर हम एक बूलियन अलजेब्रा बनाने जा रहे हैं तो। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए बी में, बी जो हमने सेट लिया हुआ है, इसमें दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए कि दोनों दूसरे के बराबर ना हो। यानी कुल मिला के दो यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। केवल एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट बराबर हो जाएंगे तो सेट थ्योरी के हिसाब से अगर दोनों एलिमेंट बराबर हो जाएंगे तो एक ही एलिमेंट हो जाएगा। तो यानी एक एलिमेंट, दो डिफरेंट यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये 6 हंटिंगटन पोस्टुलेट्स हैं दैट विद द सेट ऑफ एलिमेंट्स बी एंड द टू बाइनरी ऑपरेटर्स प्लस एंड डॉट, they form the Boolean algebra। So the exact definition of Boolean algebra is this, that it is an algebraic structure which consists of a set of elements B together with two binary operators plus and dot, which satisfy these following 6 Huntington postulates। There can another set of postulates also, but we will be discussing with the Huntington postulate। तो यहाँ तक ये बात हुई कि अब हम लोग जा रहे हैं बूलियन अलजेब्रा डिस्कस करने। और बूलियन अलजेब्रा जो मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो हमें कुछ रूल्स बताएगा उसी तरीके के जैसा हम मैथमेटिक्स में पाते आए हैं। 2 और 3 को जोड़ना हो तो हमारे पास एक रूल है कि 2 + 3 = 5, ये इस तरह के रूल है। तो ये रूल क्या करते हैं कि ये रूल नंबर्स को, रियल नंबर्स को जनरली मैनिपुलेट करने के काम आते हैं। तो हमें चूंकि लॉजिक को जो है वो मैनिपुलेट करना है कि कब ये वाला लॉजिक होगा या लॉजिक के क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, तो आउटपुट लॉजिक क्या होगा, तो उसको डिस्कस करने के लिए ऑब्वियसली हमको कोई अलजेब्रा या कोई सेट ऑफ रूल्स तो चाहिए। अलजेब्रा नाम दे दें या कुछ भी दे दें, एक सेट ऑफ रूल्स तो चाहिए ही ना। जैसे जोड़ने के लिए रूल चाहिए, घटाने के लिए चाहिए, तो रूल तो चाहिए। तो उसी रूल को बनाने के लिए हमने पूरी मैथमेटिक्स बनाई, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया विच इज नोन एज बूलियन अलजेब्रा।
तो अगर ऐसा होगा तो ये चीज एक बूलियन अलजेब्रा फॉर्म करेगा, एक बूलियन अलजेब्रा बनाएगा। अब हम इसका जो है एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्या होता है बूलियन अलजेब्रा का? हम एक सेट ले लें बी और दो ऑपरेटर ले लें प्लस और डॉट, और देखें या ऐसा कुछ बनाएं, ऑपरेटर को इस तरह से बनाएं और जो सेट ऑफ एलिमेंट्स लें उसको और ऑपरेटर्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि ये जो छयों पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं ये छयों पोस्टुलेट्स वो सेटिस्फाई करें, तो हम बूलियन अलजेब्रा बना लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें कि एक सेट लेना है हमको बी। तो हमने एक सेट ले लिया बी जिसमें कि दो एलिमेंट ले लिए 0 और 1। ये 0 और 1 वो वाला 0 और 1 नहीं है जो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, ये लॉजिक है। इसको जो है वो 0 की जगह ऑफ या ऑन भी कर सकते हैं, 1 की जगह ऑफ या ऑन भी कह सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी कह सकते हैं। किताबों में तुमको ब्लैक वाइट ऑन ऑफ इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, चाहे उसको 0 1 लिख दो। तो ये वो नंबर नहीं है बल्कि ये लॉजिक है। एक सेट चाहिए था तो एक सेट हमने ले लिया बी डेफिनेशन के हिसाब से। फिर हमको दो ऑपरेटर चाहिए, एक ऑपरेटर किसी भी सिंबल से डिनोट कर लें, यहाँ पे प्लस और डॉट से डिनोट करते हैं क्योंकि बचपन से वही करते आए तो आदत पड़ी हुई है। तो एक ऑपरेशन प्लस है और एक ऑपरेशन डॉट, इसको डिफाइन कर लें। तो इसको डिफाइन कैसे करें? इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जितने भी सेट में एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं, तो दो एलिमेंट के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उसके लिए डॉट जो है वो ऑपरेटर, जब डॉट से ऑपरेट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा ये डिसाइड कर लें, और प्लस से ऑपरेट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा ये डिसाइड कर लें। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डॉट ऑपरेटर को कैसे डिफाइन किया, जितने भी सेट में हमारे एलिमेंट हैं उसके हर कॉम्बिनेशन के लिए हम डॉट ऑपरेशन की वैल्यू बता दें तो वो डॉट ऑपरेशन पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगा। तो कैसे करें? 0 और 1 दो एलिमेंट हमारे पास हैं, तो 0 और 1 के कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा इसका। तो इन चारों ऑपरेशन के लिए हम डॉट की जो डॉट ऑपरेशन है उसको डिफाइन कर दें कि उसका आउटपुट क्या आएगा। तो उसका ये जो ऑपरेशन है ये हम ही डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जब 0 डॉट 0 करेंगे तो उसका आउटपुट 0 आना चाहिए, 0 डॉट 1 करेंगे तो 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 1 डॉट 0 करेंगे तो 0 आना चाहिए, 1 डॉट 1 करेंगे तो भी 1 आना चाहिए। हम कोई और तरीके से भी इस ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते थे, लेकिन फिलहाल इसी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसी तरह प्लस ऑपरेशन को डिफाइन करना है तो चारों कॉम्बिनेशन ले लें, और यही ऑपरेशन इतने चार ही तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं 0 और 1 अगर दो एलिमेंट है, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें अगर 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 0 प्लस 1 करें तो 1 हो, 1 प्लस 0 करें तो 1 हो, 1 1 करें तो 1। तो ये हमने क्या किया कि एक सेट डिफाइन कर लिया जिसमें कि दो एलिमेंट हैं 0 और 1, और दो ऑपरेटर चाहिए था हमको, एक डॉट ऑपरेटर है बना लिया हमने, प्लस ऑपरेटर बना लिया। और दोनों ऑपरेटर का क्या मतलब है, क्योंकि बिना मतलब के भाई कोई मतलब नहीं है, 2 प्लस 2 किया तो 4 आएगा, ये चीज़ जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक तो कोई मतलब नहीं है। तो हमने डॉट और प्लस दोनों ऑपरेटर को डिफाइन कर दिया। डिफाइन कैसे किया कि जितने कॉम्बिनेशन हैं हमारे, जितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं, उसके जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जितने तरीके से हम डॉट या प्लस ऑपरेशन को ऑपरेट करा सकते हैं, उन सब की वैल्यू जो है हमने लिख दी टेबल के फॉर्म में। इसका मतलब हमने उस ऑपरेशन को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमने एक सेट ले लिया और दो ऑपरेशन डॉट और प्लस को डिफाइन कर लिया। और जैसा कि पोस्टुलेट में ये भी दिया हुआ है कि हर एलिमेंट एक्स के लिए एक एलिमेंट एक्स प्राइम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्स प्राइम एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो करेगा क्योंकि जो है उसके अलावा 0 के अलावा एक ही एलिमेंट ही है, उसी को लिख सकते हैं। तो एक्स के करस्पॉन्डिंग जो एक्स प्राइम, अगर एक्स 0 लेंगे तो एक्स प्राइम 1 होगा, एक्स को 1 लेंगे तो एक्स प्राइम 0 होगा। तो इस तरीके से हमने एक सेट डिफाइन कर लिया और हमने दो ऑपरेटर डिफाइन कर लिया। अब अगर इसको बूलियन अलजेब्रा होना है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन है, अगर ये इसको बूलियन अलजेब्रा होना है तो जो पिछले 6 हंटिंगटन पोस्टुलेट हमने सेटिस्फाई जो पोस्टुलेट बनाए हैं,
इस सेट को, उस पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला जो है वो है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी माने कि एक सेट है जो बी हमने लिया है, उसमें 0 1 2 एलिमेंट हैं, तो हम उसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लें और जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो प्लस के रिस्पेक्ट में और डॉट के, मान लो डॉट के बारे में बात करते हैं, तो 0 और 1 लें और 0 और 1 को किसी भी तरीके से हम डॉट ऑपरेशन से ऑपरेट कराएं तो जो रिजल्ट आए वो भी सेट बी में ही हो। तो यहाँ डॉट वाली जो, जहाँ मेरा कर्सर का मूवमेंट है वहाँ देखोगे डॉट वाला जो ऑपरेशन है उसमें 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आउटपुट या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, और 0 और 1 दोनों इस सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि हम 0 और 1 कुछ भी, 0 और 1 का कोई भी किसी भी तरीके से डॉट से ऑपरेट कराएं तो जो आउटपुट आ रहा है यानी कि 0 और 1 वही आ रहा है, तो वो सेट बी में बिलोंग भी कर रहा है। यानी कि 0 और 1 को हम डॉट से अगर ऑपरेट कराएं तो ये नहीं कि 0 1 के अलावा 2 आ जाए, 2 3 या का खा या ए बी कुछ भी आ जाता तो वो सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा होता, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। लेकिन चूंकि 0 और 1 को अगर हम डॉट ऑपरेशन से ऑपरेट कराएं तो 0 और 1 आ रहा है जो कि ऑलरेडी बी में बिलोंग कर रहा है। सो दैट्स वाई दिस सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी। और इसी तरीके से प्लस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 0 1 के जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो या तो 0 आ रहा या तो 1 आ रहा, तो 0 और 1 फिर से बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ये जो है प्लस के रिस्पेक्ट में भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई कर रहा। इसका मतलब जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई हो जा रही है। फिर दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ये थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करे, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है मान लो अगर 0 मान के चलें कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 कोई और एलिमेंट लेके देखें और उसमें उसको जो है प्लस से जो है ऑपरेट कराएं 0 से और देखेंगे क्या आता है। तो कोई और एलिमेंट 0 के अलावा क्या है, 1 ही है, 2 ही एलिमेंट ही। तो अगर 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी मान के चलें और प्लस से ऑपरेट करा के देखें 1 के साथ, तो 1 + 0 देखेंगे, 1 + 0 देखेंगे तो भी 1 आ रहा है और 0 + 1 देखेंगे तो भी 1 आ रहा है। इस टेबल के हिसाब से प्लस को जो डिफाइन किए हैं वो यही डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन चलेगी जो कि इस टेबल के फॉर्म में दी हुई है। तो 1 को 0 से चाहे लेफ्ट में जोड़ो चाहे राइट में प्लस से ऑपरेट कराओ 1 ही आ रहा है इस टेबल के हिसाब से। तो इसका मतलब कि और दूसरा एलिमेंट अगर 0 को खुद ले लो तो 0 + 0 क्या है, 0 + 0 भी 0 है। तो यानी कि 0 जो है वो प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। इसी तरह से अगर डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 1 जो है वो डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। तो 2 हमको आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए थे, एक प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, एक डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है, जिसको कभी कभी एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, और जो डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में है उसको कभी कभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह देते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जैसा है डॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मतलब a + b = b + a। तो यहाँ पर दोनों डॉट ऑपरेशन भी दिया हुआ है और प्लस ऑपरेशन भी दिया हुआ है। तो डॉट ऑपरेशन और प्लस ऑपरेशन दोनों के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस है। 0 को 0 से करोगे 0, 0 + 1 0.1 करोगे तो 0 आएगा, 1.0 करोगे तो भी 0 आ रहा है। यहाँ भी देखो कि 0 + 1 करोगे तो भी आ रहा है, 1 + 0 करोगे तो भी 1 आ रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ इज बीइंग सेटिस्फाइड। और चौथी प्रॉपर्टी है कि डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। तो डॉट अगर प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो इसको प्रूव करने का एक तरीका होता है टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि x डॉट, मेरे कर्सर का मूवमेंट अगर ना दिखे तो बताना, x डॉट y + z यानी कि डॉट
को अगर हमको डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना है प्लस के ऊपर, तो हमको एक्स डॉट वाई प्लस जेड को एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड के बराबर दिखाना होगा। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम ये करें, एक्स वाई जेड के 3 वेरिएबल हुआ तो 3 वेरिएबल के जितने कॉम्बिनेशन बने पहले तो वो कॉम्बिनेशन बना लें। तो एक्स वाई जेड 3 कॉम्बिनेशन है और हर की वैल्यू 0 और एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, कोई भी वेरिएबल हो, क्योंकि सेट ही हमने बी 0 और 1 ले लिया है तो उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1, और कोई तीसरी वैल्यू तो हो नहीं सकती है। तो 3 वेरिएबल अगर एक्स वाई जेड लिया है, 1 मिनट बचा हुआ है तो ये अगर ख़त्म होगा, अभी 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम 4:30 से फिर दूसरी क्लास होगी, उसकी आईडी और पासवर्ड भेजेंगे तो फिर उससे ज्वाइन कर लेना। तो ये हम कह दें कि एक्स वाई जेड की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल हो 0 1 के उतने कॉम्बिनेशन लिख लेंगे। तो 3 वेरिएबल है तो उसकी 8 वैल्यू होगी, तो 8 कॉम्बिनेशन होंगे तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये कॉम्बिनेशन है। ये बेसिकली अगर बाइनरी में देखोगे तो 0 से लेकर के 7 तक के नंबर 8 कॉम्बिनेशन बनता है। 3 वेरिएबल है तो 0 1 अगर 2 वैल्यू ले सकते हैं तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 जो है इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 8 कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 0 से लेकर के 7 तक बाइनरी में लिखोगे। So we were discussing about how we can prove that dot is distributive over plus. डॉट को अगर प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना है तो उसका मतलब ये है कि एक्स डॉट वाई प्लस जेड को एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड के बराबर दिखाना है। तो ये बात हो रही थी कि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है तो लेफ्ट साइड में तीनों वेरिएबल लिख लिया और 0 1 के उनके जितने कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन भी लिख लिया। तो 3 वेरिएबल अगर होता है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन बनता है। 8 कॉम्बिनेशन मतलब 0 से लेकर के 7 तक बाइनरी में लिखोगे तो 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 0 लिख लिया बाइनरी में, फिर 1 लिख लिया, फिर बाइनरी में 2 है, बाइनरी में 3, बाइनरी में 4 5 6 7 लिख लिया बाइनरी में। तो जो है ये कॉम्बिनेशन हो गए। और फिर एक्स डॉट वाई प्लस जेड कैलकुलेट कर लिया अलग अलग, और एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड कैलकुलेट कर लिया एक्स वाई जेड की हर कॉम्बिनेशन के लिए जितने कॉम्बिनेशन यहाँ लिखे हैं। तो जैसे मान लो पहला वाला कॉम्बिनेशन है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है 0 0 0, तो यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना है एक्स डॉट वाई प्लस जेड। तो पहले वाई प्लस जेड कैलकुलेट कर लिया तो वाई प्लस जेड के लिए एक टेबल यहाँ बना ली, तो वाई प्लस जेड मैंने 0 प्लस 0 यहाँ के लिए। तो ऊपर जो डेफिनेशन बताई गई है प्लस ऑपरेशन की उसके हिसाब से अगर 0 प्लस 0 करोगे तो 0 आएगा, और फिर एक्स मतलब 0, तो 0 को डॉट वाई प्लस जेड यानी वाई प्लस जेड यानी कि 0 है, तो 0 डॉट 0, तो 0 डॉट 0 ऊपर के टेबल में जहाँ पे डॉट ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वहाँ पे 0 डॉट 0 देखोगे तो वो 0 आएगा, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन भी 0 हो गया। इसी तरीके से x डॉट वाई यहाँ इस टेबल से कैलकुलेट कर लो, x डॉट वाई यानी कि इस टेबल में देखोगे 0 0 पहले वाले कॉम्बिनेशन के लिए तो 0 डॉट 0 हुआ तो वो 0 हो जाएगा। x डॉट जेड देखोगे तो क्या होगा 0 डॉट 0, वो भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x डॉट वाई को x डॉट जेड से प्लस करना है, यानी कि x डॉट वाई यानी कि 0, x डॉट जेड यानी कि 0, तो 0 प्लस 0 करना है। ऊपर के टेबल से देखोगे तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। इसी तरह हर कॉम्बिनेशन के लिए तुम बना करके देखना और फिर बाद में ये देखना कि क्या x डॉट वाई प्लस जेड और x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड, यहाँ मेरा कर्सर का मूवमेंट है, वो दोनों टेबल हर कॉम्बिनेशन के लिए बराबर हो रही है कि नहीं। अगर बराबर हो रही है तो इसका मतलब कि ये वाला फार्मूला जो है सही है कि डॉट जो है वो प्लस पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसी तरीके से अगर ये दिखाना है कि प्लस डॉट पे डिस्ट्रीब्यूटिव है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पी वाले पार्ट में टेबल बना करके 8वां वैल्यू लिख करके करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए टेबल बना करके कर करके देखोगे तो वो बराबर तुमको मिलेगा।
पांचवी वाला जो प्रॉपर्टी है एक्सियोम है वो ये है कि x प्लस एक्स प्राइम 1 होना चाहिए। तो x की हर वैल्यू के लिए चेक करके देख लो कि क्या x प्लस एक्स प्राइम 1 होता है। तो मान लो 1 के लिए चेक करना है तो x की वैल्यू अगर 1 होगी तो x प्राइम की वैल्यू डिफाइन है 0, तो 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0 ऊपर के टेबल से देखो तो 1 होगा, यानी कि x प्लस एक्स प्राइम 1 आ रहा है, ये होना चाहिए और ये तुम्हारा प्रूफ भी हो रहा है। इसी तरह से x डॉट एक्स प्राइम को करके देखोगे तो वो भी जो है सही आएगा। तो इसका मतलब कि जो प्राइम वाला प्रॉपर्टी है एक्सियोम है वो भी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। और सिक्स प्रॉपर्टी ये है कि दो एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए जो कि बराबर ना हो। तो बी वाले सेट में दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 और 1 जो कि बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखा कि एक सेट बी जो हमने लिया था और जो दो ऑपरेटर लिए थे डॉट और प्लस, ये जो है जो बूलियन अलजेब्रा के जो हंटिंगटन पोस्टुलेट्स हैं इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए जिसमें कि सेट बी लिया गया है जिसमें कि दो वैल्यू है 0 और 1 और दो ऑपरेटर जो ऑलरेडी डिफाइन है बूलियन अलजेब्रा में डॉट और प्लस, इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है जैसे तुम्हारे सामने टेबल में बना हुआ है। तो ये पूरा जो सेट और ऑपरेटर है ये हंटिंगटन पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर ये हंटिंगटन पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये सेट और ये दोनों ऑपरेटर ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज बूलियन अलजेब्रा। और हम यही वाली बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। इस बूलियन अलजेब्रा को कहते हैं टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा। टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि देख ही रहे हो कॉमन सेंस से कि जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है उसमें दो वैल्यू है। और वो टेक्निकल रीज़न है कि हम क्यों दो वैल्यू या टू वैल्यू बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो हम टू वैल्यू बूलियन अलजेब्रा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जैसा कि शुरू में बात हो रही थी कि एनालॉग एक सिग्नल होता है, एक सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल के बारे में ये बात की गई कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसा कि एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन है कि जो बाइनरी होता है वही डिजिटल होता है, या जो दो वैल्यू का होता है वही डिजिटल होता है, या जो 0 1 होता है वही डिजिटल होता है। तो जो डिजिटल जो डिस्क्रीट वैल्यू अगर कई ले रहा है, दो के अलावा भी 3 4 5 ले रहा है तो वो भी डिजिटल ही होता है। लेकिन हम लोग टू वैल्यू बूलियन अलजेब्रा इसलिए पढ़ते हैं या डिजिटल को बाइनरी के फॉर्म में इसलिए पढ़ते हैं, ऑन ऑफ के फॉर्म में इसलिए पढ़ते हैं, ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में इसलिए पढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में इसलिए पढ़ते हैं। ये सारे डिफरेंट नॉमेनक्लेचर हैं, चाहे 0 1 लिखो, चाहे ऑन ऑफ लिखो, चाहे ट्रू फॉल्स लिखो, चाहे ब्लैक वाइट लिखो, ये सब लॉजिकल वेरिएबल्स हैं लॉजिक की तरह से। चाहे ऑन ऑफ लिखो, ये सब लॉजिकल वेरिएबल्स हैं। तो टू वैल्यू के अलावा हम लोग और भी वैल्यू पढ़ सकते थे, लेकिन टू वैल्यू पढ़ने के पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि जो ये डिजिटल अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली इसको ले जा कर के हम लोग किसी सर्किट से इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। अगर बूलियन अलजेब्रा पढ़ लें और इसको इम्प्लीमेंट ना करा पाएँ तो कंप्यूटर बनेगा कैसे? बने ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर तो हार्डवेयर तो होगा ना, वो हार्डवेयर बनेगा कैसे? वो तो किसी सर्किट से ही बनेगा। ये तो घाटे से और ये देखिए सर्किट तो ये बर्रा कने देखिए ना हमारे बर्रा उका का समझो तो बोलते हैं थोड़ी तेज से काटे थोड़ी कमजोर से ये जो भाई ये अपना मोबाइल या तो म्यूट करके रखो या तो बोलो मत। हम भला ये हम कह क्या रहे थे कि टू वैल्यू बूलियन अलजेब्रा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो किसी सर्किट से बनाओगे ना चीज़ों को, इस कंप्यूटर बनाओगे तो अल्टीमेटली वो किसी सर्किट से बनेगा, किसी सर्किट एलिमेंट से बनेगा। वो सर्किट एलिमेंट जनरली ट्रांजिस्टर होता है, मोटा मोटा कई तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में या किसी भी सर्किट में ये पता करना कि इसकी आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, अगर तीन वैल्यू में डिस्टिंग्विश करना होगा तो ये किसी भी सर्किट के लिए ज़्यादा कष्टदायी होगा। ये पता करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि ये तीन वैल्यू में से कौन वैल्यू ले रहा है।
जबकि ये पता करना ज़्यादा आसान होगा कि ये सर्किट का आउटपुट 0 है या 1 है। 0 मतलब ऑन है कि ऑफ है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में और आगे डिटेल में पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे कि ऑन ऑफ का मतलब इलेक्ट्रॉनिक जनरली ऑन का मतलब ये होता है कि 5 वोल्ट और ऑफ का मतलब जनरली मोटा मोटा बोल रहे हैं, हर टेक्नोलॉजी के अलग होता है। मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि ऑन का मतलब 5 वोल्ट आउटपुट और ऑफ का मतलब 0 वोल्ट। तो किसी भी सिचुएशन में ये पता करना ज़्यादा आसान है कि आउटपुट हमारा मतलब 5 वोल्ट है या 0 है, क्योंकि 0 और को तुरंत डिस्टिंग्विश हो जाएगा, 5 वोल्ट है तुरंत डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो ऑन या ऑफ हमारा ट्रांजिस्टर ऑन है या ऑफ है ये पता करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इजी है। बल्कि इसके कि हम ये पता करें कि आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, अब 3 में अगर डिस्टिंग्विश करना होगा तो ये ज़्यादा कठिन है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े इसलिए जो है दो वैल्यू में डिस्टिंग्विश करना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए जो है वो हम लोग जो है टू वैल्यू बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं और इसी का इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल में करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोगों को ये मिसकंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन होता है कि डिजिटल का मतलब 0 1 या बाइनरी होता है। डिजिटल का मतलब बाइनरी ही नहीं होता, डिजिटल का मतलब बाइनरी भी होता है। बाइनरी को भी डिजिटल कहते हैं, लेकिन 3 और 4 वैल्यू भी अगर डिस्क्रीट वैल्यू दे रहा है सिंबल, सो दैट इज आल्सो नोन एज डिजिटल सिंबल। सो दिस इज अबाउट बूलियन अलजेब्रा। यहाँ तक में अगर किसी को लगता है कि कुछ पूछना चाह रहा है तो बताओ। यहाँ तक में अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताओ, और अगर नहीं पूछना चाह रहे हो सर ये नोट शेयर करेंगे? हाँ भाई क्यों नहीं शेयर करेंगे। अरे हम ये कह रहे हैं कि कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछो, नोट्स तो मिल ही जाएंगे। नोट्स भी और नोट्स उसी किताब से जो किताब ग्रुप में शेयर है, ऐसा नहीं है कि कोई। सर ये भी शेयर कर देंगे, सही रहेगा। हाँ सही तो रहता है ये बात तो। तो ये बात और ये कहानी है बूलियन अलजेब्रा की कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है और बूलियन अलजेब्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल का मतलब जैसा हमने बताया कि 0 1 ही नहीं होता, लेकिन हम लोग टू वैल्यू बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग टू वैल्यू बूलियन अलजेब्रा को स्टडी करते हैं और उसके बारे में चीज़ें पढ़ते हैं। फिर एक चीज़ होता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये कहता है कि अगर कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हो, बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब जैसे ये सामने तुम्हारे एक थ्योरम लिखा होगा, मान लो x + x = x, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन हुआ। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है 2x + 3y = 4, ऐसा कुछ होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसमें x और y की कोई वैल्यू होगी, 2 3 4 5 कैलकुलेट करके निकाल लिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं। तो कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन में अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को आपस में एक्सचेंज करते हैं, यानी 0 की जगह उस एक्सप्रेशन में 1 लिखते हैं और 1 की जगह 0 लिखते हैं, और जो ऑपरेटर प्लस और डॉट है उसको एक्सचेंज करते हैं, यानी कि प्लस की जगह डॉट कर दे, डॉट की जगह प्लस कर दे। तो किसी एक्सप्रेशन में अगर हम ये चेंज करते हैं तो जो नया एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन भी बूलियन अलजेब्रा का एक वैलिड एक्सप्रेशन होगा। यानी ये नहीं कह सकते हो कि वो कुछ तुमने अगर ये चेंज किया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इनवैलिड हो जाएगा, वो भी वैलिड होगा। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। और फिर बूलियन अलजेब्रा के कुछ थ्योरम्स होते हैं। तो कुछ थ्योरम्स हैं जो जनरली यूज होते हैं काफ़ी। उसमें से एक थ्योरम कहता है कि x + x x होगा। तो अगर x + x को x प्रूव करना है तो इसका दो तरीका होता है। एक तो इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव किया जाता है, दूसरा अलजेब्रिकली प्रूव किया जाता है, यानी कि बूलियन अलजेब्रा के जो कायदे कानून है उसकी मदद से। तो टेबल से कैसे किया जाता है वो यहाँ पे राइट साइड में देखोगे जो टेबल बनी है। अगर तुमको x + x और x को बराबर प्रूव करना है, एक तरफ x लिख लो, एक तरफ x + x लिख लो, और x की जितनी भी वैल्यू है उसके लिए ये दोनों को कैलकुलेट कर लो। तो x में तो कुछ कैलकुलेट करने जैसा है नहीं, तो x की दो वैल्यू हो सकती है, 0 1 दोनों लिख लो।
अब जब x 0 होगा तो x प्लस एक्स की क्या वैल्यू होगी, यानी 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 शुरू में वहाँ पे जो है वो डिफाइन किया है, 0 प्लस 0 मतलब 0। इसी तरह 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 वहाँ शुरू में डिफाइन किया है कि 1 प्लस 1 1 होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 1 लिख दिया। अब दोनों टेबल को देख लिया है, दोनों टेबल बिल्कुल सेम है, x की हर वैल्यू के लिए x प्लस एक्स वही है जो x है, यानी कि x जो है वो x प्लस एक्स के बराबर होगा। ये तरीका है कि ट्रुथ टेबल के तरीके से कैसे किसी चीज़ को प्रूव किया जाए। दूसरा तरीका है कि बूलियन अलजेब्रा के जो थ्योरम्स हैं उनकी मदद से कैसे प्रूव किया जाए। तो उनकी मदद से कैसे प्रूव किया जाए, तो यहाँ पे एक प्रूफ लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। x प्लस एक्स लिखा हुआ है, x प्लस एक्स को हम x प्लस एक्स डॉट 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि x प्लस एक्स या कोई भी एलिमेंट हो उसको डॉट 1 करोगे तो वही एलिमेंट आएगा, इसीलिए हम x प्लस एक्स को x प्लस एक्स डॉट 1 लिख सकते हैं। 1 की जगह हम x प्लस एक्स प्राइम लिख सकते हैं। पीछे जो हंटिंगटन पोस्टुलेट दिए हुए हैं उसमें देखोगे तो एक प्रॉपर्टी है कि x प्लस एक्स प्राइम इक्वल टू 1, ये वाली x प्लस एक्स प्राइम इक्वल टू 1, तो 1 की जगह हम x प्लस एक्स प्राइम लिख सकते हैं। अब जो है वो x प्लस एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स प्राइम है, इसको हमने लिख दिया x प्लस एक्स डॉट एक्स प्राइम। ऐसा किस लिए लिखा, ये बगल के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्योंकि प्लस जो है वो डॉट पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो x प्लस वाई डॉट जेड को हम x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उल्टा था, राइट हैंड साइड यहाँ लिखा हुआ था, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लिया। और x डॉट एक्स प्राइम 0 होता है, ये वाला फिफ्थ बी, x डॉट एक्स प्राइम 0 होता है, तो x डॉट एक्स प्राइम को 0 लिख दिया। फिर x प्लस 0 क्या होता है, x होता है, क्योंकि 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन वाले ऑपरेशन के लिए, x प्लस 0 जो है x हो गया। इस तरह से जो है x प्लस एक्स को हमने x प्रूव कर दिया। तो ये तरीका होगा कि हम बूलियन अलजेब्रा के जो थ्योरम्स वगैरह हैं उनकी मदद से, थ्योरम्स या पोस्टुलेट की मदद से किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रूव करें। और दूसरा तरीका ये होता है कि ट्रुथ टेबल, जो कि ऊपर हमने बताया कि हर वैल्यू के लिए जो भी दो चीज़ बराबर करनी हो उसको x या x के अलावा भी अगर कभी y z कई वेरिएबल हो तो हर वेरिएबल के कॉम्बिनेशन के लिए उसको प्रूव कर लो, उसको बराबर दिखा दोगे तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो बराबर है। इसी तरह x डॉट x को x प्रूव करना है तो इसको भी टेबल से भी कर सकते हैं जैसा कि यहाँ किया हुआ है, और बूलियन एक्सियम्स या पोस्टुलेट की मदद से भी कर सकते हैं जो कि यहाँ पे किया हुआ है, और साथ ही साथ इसको डुअलिटी प्रिंसिपल से कर सकते हैं। डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर प्लस और डॉट को हम इंटरचेंज कर दें या और 0 और 1 को हम चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो जो नया एक्सप्रेशन आएगा वो भी वैलिड एक्सप्रेशन होगा। तो हमारे पास फर्स्ट ए में एक एक्सप्रेशन है x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, तो x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स में हम प्लस को डॉट से रिप्लेस कर दें और जो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है उसको 1 से और 1 को 0 से कर दें। तो चूँकि इस वाले फर्स्ट ए में कहीं पर 1 और 0 तो आ ही नहीं रहा है तो उसकी बात ही खत्म हो गई, केवल प्लस बचा हुआ है, तो प्लस को हम डॉट कर दें तो हमारा जो नया एक्सप्रेशन आएगा वो भी वैलिड एक्सप्रेशन होगा। तो हम प्लस यहाँ क्या करते हैं, डॉट करते हैं, तो x डॉट एक्स हो जाएगा, x डॉट एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, तो x डॉट एक्स विल बी इक्वल टू एक्स। यानी कि फोर्थ बी वाला प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी को अगर हम लगाएं 1a में तो 1b आ जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल बताया कि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी जो है वो कैसे काम करता है। और अगर इसको बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम से प्रूव करना है तो x डॉट एक्स की जगह x डॉट एक्स लिखा और प्लस उसमें 0 कर दिया, क्योंकि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है प्लस के रिस्पेक्ट में, तो 0 प्लस करोगे तो वही एलिमेंट आता है, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं।
जीरो की जगह हम एक्स डॉट एक्स प्राइम लिख सकते हैं और फिर ये वाला नियम लगा करके इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसा तुम्हारे सामने दिया हुआ है। तो ये तरीका होता है कि कैसे, ये तो कुछ थ्योरम है, तो कुछ थ्योरम की को हमने पोस्टुलेट्स की मदद से और ट्रुथ टेबल की मदद से या प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी की मदद से इसको कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, इस तरह की बात। इसी तरीके से एक जो है वो थ्योरम है कि x + 1 x होगा, इसको भी ट्रुथ टेबल से यहाँ पर दिखा दिया है। और अगर बूलियन अलजेब्रा के एक्सियम से करोगे तो x + 1 को 1 × x + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 आइडेंटिटी है, एलिमेंट है डॉट ऑपरेशन के लिए। और फिर 1 की जगह हम x + x प्राइम लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। और फिर उसको नियम लगाते हुए इस तरीके से रिड्यूस करके 1 तक ले आइए। इसमें जो भी मैनिपुलेशन किया गया है वो राइट साइड में विदिन ब्रैकेट लिखा हुआ है, अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। और अगर 2a वाले में अगर हम ड्युअलिटी प्रिंसिपल लगा दें तो वो 2b बन जाएगा, और बाकी और तरीके से कर सकते हैं। फिर एक नियम होता है, उसको कहते हैं इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही नंबर होगा, यानी x का कॉम्प्लीमेंट लें और फिर कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वही नंबर आ जाएगा। ये कैसे होगा, ये इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना, ना समझ में आए तो पता। यहाँ तक में अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो बताओ। नहीं तो 2 मिनट हमको दो, तो हम जो है तुम्हारी जो है पहले अटेंडेंस जो है वो नोट कर लें। हाँ, यहाँ तक में सब समझ में आ गया। तो इसी तरीके से एक जो है वो एब्जॉर्प्शन लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ ये कहता है कि x + xy विल बी इक्वल टू x। ये प्रूफ करना है तो इसको ट्रुथ टेबल की मदद से भी प्रूफ किया जा सकता है। x और y ले लिया, हमको प्रूफ करना है x + xy को x के बराबर, तो x y ले लिया, यहाँ पे x y की एक टेबल बना के x y कंप्यूट कर लिया और फिर x + xy कंप्यूट कर लिया। x y की जो वैल्यू लेंगे सारे कॉम्बिनेशन लेंगे, तो 2 वैल्यू है, 2 वेरिएबल है, तो 2⁴ यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1। तो हर वैल्यू के लिए एक्स वाई पहले कंप्यूट कर लिया, फिर x + xy कंप्यूट कर लिया, और ये देख लिया कि क्या x + xy x के बराबर है। तो यहाँ पे x वाली टेबल देख लो 0 0 1 1, और x + xy वाली देख लो 0 0 1 1, तो दोनों जो है वो सेम आ रही है, यानी कि ट्रुथ टेबल के हिसाब से एब्जॉर्प्शन का प्रूफ होता है। और अगर बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से करोगे, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, सारी रीजनिंग भी लिखी हुई है, इसमें अगर कोई चुनना समझ में आया तो बताना, बाकी सब लिखा ही हुआ है।
अगर यहाँ तक में कोई चीज पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर अभी यहाँ पे बंद करते हैं। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। तो आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास विल बी इन्फॉर्म्ड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू सर।